It states that under identical physical conditions, identical physical conditions का मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो भी कंडीशंस हैं अगर हम उनको चेंज नहीं करते, टेम्परेचर प्रेशर तो कॉमन पैरामीटर होते हैं इसमें, वैसे टेम्परेचर ही मेन होता है, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते तो the current which flows through a conductor is directly proportional to the potential difference applied. और Ohm's law कल क्या बताया था कि Ohm's law is not V is equal to IR. Ohm's law is that the ratio of potential difference to the current remains constant for different values of potential difference. जो potential difference और current की ratio आएगी that is same, that is Ohm's law. Non-ohmic conductor के लिए वो ratio variable होगी, ohmic conductors के लिए वो ratio constant होगी. So you can write under identical physical conditions. Under identical physical conditions, the ratio of potential difference applied across a conductor, and current flowing through it are proportional to each other. बेसिकली होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, are proportional to each other. That is, if V is the potential difference applied across a conductor and I is the corresponding current that flows, where R is constant of proportionality. सर कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद क्या कहा? And I is the corresponding current that flows. R is equals to V by I is equal to constant. अगर इसका मैं VI ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं पासिंग थ्रू मीडियम। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पे रखता हूं और करंट को x एक्सिस पे रखता हूं तो स्लोप क्या होगी? रेजिस्टेंस, और अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन ना होता तो स्लोप क्या होती? डीवी बाय डी है, डीवी बाई डी। रेजिस्टेंस, बिकॉज वो चेंज कर रही है, बट अगर मैं I को इस पे रख दूं तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज द रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं, बिकॉज y बाय x स्लोप होती है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, तो m इज y बाय x, तो इधर y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे i है, तो इधर को हम लेते हैं कि स्लोप इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इस ग्राफ में। और इधर रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज रेजिस्टेंस। नॉर्मली ये वाला ग्राफ ज्यादा बनेगा,
Conductors which obeys Ohm's law, slope should be constant. Conductors which obeys Ohm's law, slope of VI curve is constant, or VI graph is a straight line. Or VI graph is a straight line. Can write physically, इसके आगे लिख लो. So 1 minute. ठीक है सर. Physically, resistance of conductor is opposition to the physically resistance is opposition to the flow of charges. Opposition to the flow of charges or current carriers through the conductor. When potential difference is applied across. When potential difference is applied across a given conductor, the electric field intensity inside the conductor does work. Electric field intensity inside the conductor does work on the charges, on the mobile charges. For example, Sir, repeat करना last line. electric field intensity does work on the mobile charges. For example, electrons gets accelerated and their kinetic energy increases. But as the electrons move through conductor, as the electron moves through conductor, they collide with the lattice ions, increasing the vibrational kinetic energy. Increasing the vibrational kinetic energy of the lattice ions. सर एक बार रिपीट करना है. क्या कहाँ तक लिखा है वो बताओ, फिर उसके आगे करता हूँ. अभी कहाँ तक लिखा आपने? Increasing the kinetic energy of Increasing the kinetic energy of electrons. Increasing the vibrational kinetic energy of lattice ions. Increasing the vibrational kinetic energy of lattice ions. These collision results in opposition to the flow of charges. These collision results in opposition to the flow of charges. And thus resistance
also the increase in vibrational kinetic energy of latticeines. Also the increase in vibrational kinetic energy of latticeines. उससे क्या होगा? Results in, कल बताया था ये, heat. Increase in temperature. results in increase in temperature of the conductor. So heat generate होगी या internal energy बढ़ेगी, किसी भी term में लिखो. Increase in vibrational kinetic energy of latticine results in increase in temperature of the conductor. Increase in temperature of the conductor. Thus larger the number of collisions, larger will be the resistance. Larger the number of collisions, larger will be the resistance. Units क्या हो जाएंगे? R is equals to V by SI में Volt per ampere. volt per ampere, or common name is ohm. In CGSC में स्टार्ट वोल्ट पर स्टार्ट एम्पेयर, ये बट यूज नहीं होते। CGSC यूनिट करंट के आपको शायद ही किसी क्वेश्चन में दिखें। सिंबल इज ओम। तो अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm if Potential difference is 1 volt and current is potential difference of 1 volt results in a current flow of 1 ampere through the conductor. So you can write resistance of a conductor is said to be 1 ohm if resistance of conductor is said to be 1 ohm if potential difference of 1 volt applied across that conductor, potential difference of 1 volt applied across that conductor results in current flow of, if potential difference of 1 volt applied across conductor results in current flow of 1 ampere through the conductor. अब बोर्ड में 2-3 बार उन्होंने पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। R is V by डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, because potential यही पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। चार्ज तो एसआई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, चार्ज को हम कैसे लिख लेंगे? फंडामेंटल यूनिट कौन सा थे? जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे उसमें चार्ज नहीं था, चार्ज की जगह क्या था? ampere. करंट। तो चार्ज के अंदर रिटर्न इज करंट इनटू टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t minus 2. आई स्क्वायर इज a स्क्वायर इनटू t। तो फॉर्मूला क्या बन गया? m1 l2 t minus 3 a minus 2। ये बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। सो m1 l2 t minus 3 a minus 2। अब नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आता है दैट इज अबाउट ड्रिफ्ट स्पीड। हम नॉर्मली लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और मैंने उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया तो मोशन ऑफ फ्री चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर इट्स रैंडम। रैंडम मोशन का मतलब ये था कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, देयर वेलोसिटी इज 0, कि वो अपनी जगह पे ही मूव करते जा रहे हैं, उनके पास ड्रिफ्ट स्पीड तो है
They are moving at a very high average speed of 10 to the power 6 meter per second, but their average velocity comes out to be 0. They are traveling distance, but their displacement is not there. वो अपनी जगह पे ही move करते जा रहे हैं. But अगर हम potential difference apply करेंगे तो क्या होगा? Will they move in a straight line or the non-straight line? Non-straight line. Non-straight line because अब collisions तो अभी भी होंगी. Because आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कंडक्टर के क्रॉस, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उन इलेक्ट्रॉन्स पे. इलेक्ट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो दे ट्राई टू मूव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. बट एज दे स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड, दे स्टिल कोलाइड विद द लैटिस एंड द लैटिस लाइन से कोलाइड करके उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी रैंडमली. तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, they will not move with a speed of 10 to the power 6. They will have a small drift velocity. After every collision, they try to move in direction. हर collision के बाद कोशिश क्या होगी? Yes, किधर sir. जाना है? फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के ऑपोजिट? Opposite. उनके पास एक प्रेफर्ड डायरेक्शन होगी. उनकी मोशन टोटली रैंडम नहीं रही. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उनकी मोशन टोटली रैंडम थी. Now it's not totally random because after every collision they try to move in direction opposite to the field. So although the average speed is 10 raised to power 6 meter per second, the average velocity comes out to be 10 raised to power minus 4 meter per second. Yeah, you can say 0.1 millimeter per second. So this average velocity with which electrons actually move across a conductor, that is known as drift velocity. तो 1 मिलीमीटर हो सकती है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड हो सकती है. मतलब हम ऑर्डर लेते हैं 10 to the power -3 to 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड, बहुत धीरे मूव करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वायर्स में इतनी धीरे ही मूव करते हैं तो स्विच ऑन करते ही लाइट कैसे ऑन हो जाती है? बिकॉज अगर उनकी स्पीड मैं बोलूं से 1 मिलीमीटर पर सेकंड ले लो, तो 1 मीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 1000. तो 1000 मिलीमीटर कवर करने में उन्हें 1000 सेकंड लग जाने चाहिए. सो रफली 16-17 मिनट्स लग जाने चाहिए. स्विच में और से बल्ब में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन को स्विच से बल्ब तक जाने में 16-17 मिनट्स लग रहे हैं. तो हम स्विच ऑन करते हैं वो साथ ही ऑन हो जाता है बिकॉज करंट बहुत तेज फ्लो करता है. ये करंट ही तो है. करंट क्या आता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज की स्पीड ही तो बोली है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. अब समझो हो क्या रहा है. इट्स नॉट बेसिकली, अगर मैं ऐसे लूं, मान लो ये मेरा स्विच है और यहां पे एक से टंगस्टन फिलामेंट बल्ब लगा है और ये डिस्टेंस है से 1 मीटर का. आपने स्विच ऑन किया. अब इसको अगर मैं कंडक्टर को ऑब्जर्व करूं, ये जो वायर है इस पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरी वायर में. तो ये स्विच ऑन बल्ब कब होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बल्ब तक पहुंचेगा या जो ऑलरेडी यहाँ पे जब ये बल्ब में एंटर कर जाएगा? बल्ब के पास वाला। ऑलरेडी वायर में बल्ब के पास ही है. तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा विद द स्पीड ऑफ लाइट. क्या आपने स्विच ऑन किया तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी शुरू हो गई. तो बल्ब में होता क्या है बेसिकली? स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन गए, तो फिर हुआ क्या उससे? सर जब वो कोलाइड किए तो रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट निकली मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन जाने से वो बल्ब ग्लो कैसे किया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. मतलब मेरा वो मतलब नहीं है. आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो गए उसने अपनी एनर्जी बल्ब को दे दी और जो वापस आए उनकी एनर्जी कम थी. 2 वायर्स क्यों लगती हैं? इलेक्ट्रिसिटी में 2 वायर्स होती है, तीसरी अर्थ की होती है. अगर आपके पास सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट जिसमें आप प्लग लगाते हो, इनमें करंट सिर्फ एक में होती है. तो ये 3 पिन क्यों होते हैं? मतलब 3 पॉइंट क्यों होते हैं प्लग डालने के लिए? एक तो अर्थ का हो गया, 2 बताओ. लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। कौन सा? लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स।
वो लाइव और न्यूट्रल वायर का क्या मतलब होता है? सर लाइव से करंट आता है और न्यूट्रल से करंट वापस जाता है। वापस जाता है बिकॉज बल्ब इज नॉट अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उन्हें वापस भी लेके आना है। तो जब आप स्विच ऑन होता है तो दोनों में करंट होती है जब कोई डिवाइस ऑपरेट हो रही है, पर जब डिवाइस ऑपरेट नहीं होती तो सिर्फ इनमें से एक में करंट होगी। पर जब कोई डिवाइस के थ्रू करंट जा रही है तो जब वापस आएगी वायर इसमें भी करंट होगी। सो दोनों वायर्स में करंट होती है। तो बेसिकली इट्स नॉट कि जो बल्ब स्विच के पास इलेक्ट्रॉन है वो जब बल्ब तक पहुंचेगा तो ग्लो करना है। जो ऑलरेडी बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में वही बल्ब में चले जाएंगे एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो दैट्स व्हाई इट्स इंस्टेंट प्रोसेस कि वो लाइट की स्पीड से, या यू कैन से द एनर्जी ट्रांसफर इट टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। कि जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसफर हो जाती है, तो वो बल्ब स्विच वाले इलेक्ट्रॉन तो वहां तक पहुंचता रहेगा जब पहुंचना है। इट विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग। समझ में आया ये पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे छोटी क्लास में हमें क्वेश्चन करते थे ना कि अगर हमने बैटरी से एक लाइन में खूब सारे बल्ब्स को कनेक्ट किया हुआ है और अभी बैटरी का स्विच ऑफ है, तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा या सारे बल्ब साथ में जलेंगे? तो सर उसमें हम ये कहते थे ना कि सारे बल्ब साथ में इसलिए जलते हैं क्योंकि चार्ज जब बल्ब से होकर बैटरी में वापस आता है तभी करंट फ्लो करता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप उसको भी ऐसे ही समझो। मान लो हाँ जी। यहाँ पे बीच में बहुत सारे बल्ब लगे हैं, एक नहीं है, यहाँ पे सब जगह बल्ब लगे हुए हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये साथ साथ ही जाने शुरू हो जाएंगे ना। ये तो नहीं है ना यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जब वो आगे पहुंचेंगे तब अगला बल्ब जलेगा। अगले बल्ब के पास भी तो वो भी तो वायर से अटैच्ड है, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है। ओके सर। तो सर तो जब 11 हम जब आप पहले पढ़ते थे ना 9th में, तो आप वो चार्जेस के मोशन के हिसाब से नहीं पढ़ते थे, आप जनरल कह देते थे कि करंट फ्लो कर रही है। बट आप लॉजिकली सोचो तो पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन है। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको एनर्जी मिल गई। तो जहां पे भी बल्ब लगाओगे वहां पे ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इसको एनर्जी सप्लाई कर देगा। ओके सर। सीरीज और पैरेलल दो तरह के कनेक्शन पढ़े थे आपने इसमें। जैसे दिवाली की जो लाइट लगती है देयर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब चार्ज सेम। एक ही वायर से सारे कनेक्ट बिकॉज एक वायर के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो बीच में से अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा, बिकॉज वायर सर्किट ब्रेक कर गया बीच में से। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फिर वो कोई भी स्विच कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। पर घरों में जो कनेक्शन होते हैं दैट इज पैरेलल कनेक्शन। एक बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा तो बाकी पैरेलल में लगे हों फिर भी ग्लो करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे इस चैप्टर में। जैसे कई बार आपको पूछते हैं कि आपके घर में जैसे कोई हाई पावर डिवाइस है, मान लो एसी है, तो एसी जब स्विच ऑन होता है यू ऑब्जर्व कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बाकी सारी घर की जो लाइट्स हैं वो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड डिम हो जाती हैं। या आप कार में इसको करके देख सकते हो। जैसे कार आपने हेडलाइट ऑन कर लो, पहले हेडलाइट ऑन करके जब कार का इंजन स्टार्ट करते हो तो थोड़ी देर के लिए हेडलाइट डिम हो जाती है। तो उसका रीजन सोचना है ऐसे क्यों होता है। जब एसी ऑन होता है तो थोड़ी देर के लिए लाइट्स क्यों डिम हो जाती हैं। सो एनीवेज पहले हम इसको करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को। सो हमने कहा ड्रिफ्ट स्पीड इज द स्पीड विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस एक्चुअली मूव इन अ कंडक्टर। अब हमने एक टर्म और इसमें ऐड करनी है व्हिच इज रेफर्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। नाम से क्या लगता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन मतलब सर टाइम जिसके बाद कोई चीज नॉर्मल हो जाती है दोबारा काम करने के लिए। तो इस केस में है कि इलेक्ट्रॉन जब मान लो कंडक्टर में मूव कर रहा है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टर में मूव कर रहा है। ये पहले इधर मूव किया, किसी से कोलाइड किया, फिर इधर आ गया, फिर ये इधर चला गया, फिर इधर चला गया। मतलब पहली कोलिजन हुई यहाँ पे, सेकेंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, फोर्थ कोलिजन, सो ऑन। जो फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन में टाइम है और जो सेकेंड और थर्ड में है जरूरी है सेम ही होगा? नो सर। नो सर। वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो टाइम बिटवीन टू कोलिजंस जो होता है दैट इज
The time when it is not colliding, मतलब there is no force as such exerted on it. Relaxation time को हम बोल देते हैं average time between two collisions. Because जैसे first collision हुई after time t1, second collision हुई after time t2, third after t3, तो जो average time हो जाएगा, that is referred as relaxation time. ये जो कंसेप्ट है ना, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन कराई है दैट इज 9th क्लास डेफिनेशन. ओम्स लॉ की जो एक्चुअल डेफिनेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अब हम एक्चुअल में यूज करेंगे जिसको आगे जाके. तो हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि अगर मेरे पास कंडक्टर है और उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हाउ द रेजिस्टेंस गेट्स अफेक्टेड. अब उसके क्या फैक्टर्स होंगे, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है. जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, तो इनमें हम लेते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है. कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. तो ये वेरिएशन कैसे होगी, उसके लिए चीजें पढ़नी जरूरी है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है. और फिर हम ओम्स लॉ की एक नई डेफिनेशन लिखेंगे जो +1 की है, सॉरी +2 की. सो यू कैन राइट फर्स्ट ड्रिफ्ट स्पीड. ये समझ आ गया सबको ड्रिफ्ट स्पीड होती क्या है. इट इज डिफाइंड एज the average speed with which charges actually move across a conductor. Speed नहीं, average velocity कह लो या उसको average speed कह लो, because distance तो वो travel कर रहे हैं, but their displacement is not very large. तो हमने इसको कई जगह पे बुक्स में पढ़ोगे तो उसको लिखा होता है ड्रिफ्ट स्पीड, average speed, but actually it's not the speed, it is the velocity, average velocity with which charges are moving across a conductor. But वो इतनी कॉमन टर्म है कि वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना हो तो. वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन. तो कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल. तो फील्ड तो एक रीजन है, बट जब वो लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इट मींस इट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू हैव टू कैलकुलेट. सिमिलरली वो अगर ड्रिफ्ट स्पीड भी लिख देते हैं तो आपको बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है. सो यू कैन राइट. पूछो. रिलैक्सेशन टाइम था सर, ये तब था जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ. दोबारा पूछना, क्या पूछा, मेरे को सर समझ आपने नहीं आया बताया ठीक. था सर जो रिलैक्सेशन टाइम है सर वो दो डिफरेंट कोलिजन्स के बीच का टाइम है. तो सर ये कोलिजन तब हो रही है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है या फिर नहीं अप्लाइड. दोनों केसेस में ही होंगी. जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया तब भी होंगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तब भी. मतलब ऐसा नहीं है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं होगा. रिलैक्स कोलिजन्स तब भी हो रही हैं, रिलैक्सेशन टाइम तब भी होगा. पर हम इसको यूज तब करते हैं जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो रिलेशन डिराइव करते हैं. पर ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो कोलिजन्स नहीं हो रही. कोलिजन्स तो तब भी हो रही और तब भी रिलैक्सेशन टाइम है कुछ. रिलैक्सेशन टाइम का मतलब जब इलेक्ट्रॉन आराम कर रहा है, किसी से कोलाइड नहीं कर रहा, वो टाइम. जब वो कोलाइड करेगा तब तो उस पर फोर्स लगे. दैट इज नॉट द टाइम व्हेन इट इज रिलैक्सिंग, व्हेन इट इज कोलाइडिंग. रिलैक्सिंग टाइम होता है जब वो एक लैटिस आयन से दूसरे लैटिस आयन तक जा रहा है या एक लैटिस आयन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जा रहा है. वो जो एवरेज टाइम है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. सो यू कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हम कंडक्टर्स को लेके ही पढ़ते हैं रादर देन जनरल पढ़ने के. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So you can write when no potential difference is applied across the conductor, when no potential difference is applied across a conductor, the electric field intensity inside the conductor is kitni? Zero. Zero. Electric field intensity inside the conductor is zero. No force acts on the electrons. No external force लिख लो.
एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्यों लिखा? नो एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज फोर्स तो लगेगी जब वो कोलाइड करेंगे तो लैटिस आयंस उन पे फोर्स लगाएंगे, बट वो इंटरनल हो जाएगी कि वो अंदर से ही लग रही है सिस्टम के. नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स and the motion is random. And the motion is random. Brownian motion बोलते हैं जिसको. The motion is random. That is, although electrons are moving with an average speed of electrons are moving with an average speed of 10 raised to power 6 meter per second, their average velocity is zero. Although electrons are moving with an average speed of 10 raised to power 6 meter per second, their average velocity is zero. ब्रैकेट में रीजन लिख लो. Random motion arises because as free electrons move, random motion arises because as free electrons move with high speed, inside the conductor, free electrons move with high speed inside the conductor, they collide with the lattice ions which changes their direction arbitrarily. Next paragraph में लिखो. But when potential difference is applied across the conductor, although collisions still take place, after every collision, electrons have a preferred direction of motion. After every collision, electrons have a preferred direction of motion and they try to move in direction opposite to the field. They have a preferred direction of motion and they try to move in direction opposite to the field. सर एक बार रिपीट कर दो कि मैं थोड़ा सा अभी ज्वाइन किया था. कहाँ तक लिखा आपने? सर अभी आप ही करा के रहे हो भैया. आपने लिखा कहाँ तक है वो बताओ. मैं डिफ वेलोसिटी तक पहुंचा था, मूव्स तक पहुंचा था, काफी पीछे रह गया मैं. रैंडम मोशन ऑफ वेक्टर्स. दो आप तीन कहाँ? लाइन छोड़ लो, बाद में देख लेना. अभी आगे लिख लो, फिर मेरे को वैसे सबको रिपीट कराना पड़ेगा ना. दो जी तीन लाइन छोड़ लो, कुछ खास नहीं है. जो समझाया है सिर्फ उसी को ही लिखाया था. Thus, although average speed is 10 raised to power 6 meter per second, on the application of potential difference, thus although average speed is 10 raised to power 6 meter per second, on application of external potential difference, average velocity is 10 to the power minus 4 meter per second to 10 to the power minus 3 meter per second. ऐसे फिक्स नहीं होती, मतलब डिपेंडिंग ऑन फिजिकल कंडीशंस वो बदलती है, इसलिए ऐसे रेंज लिखिए. 10 to the power minus 4 meter per second to 10 to the power minus 3 meter per second. This average velocity with which
electrons actually move across a conductor. Average velocity with which electrons actually move across a conductor on application of potential difference is called drift velocity. Next line में लिख लो. Also the average time between two successive collision of electrons. Average time between two successive collision of electrons in a conductor is called average time between two successive collision of electrons in a conductor is called relaxation time. It's called relaxation time. Next is relation between current and drift velocity. मेरे पास मान लो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. मैंने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, से नेगेटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? दे विल बी low to high. तो राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड, राइट साइड, Right राइट side. साइड. इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेंगे. अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को इस एंड P से Q तक जाने में टाइम dt लगा, एक इलेक्ट्रॉन को P से Q तक जाने में टाइम dt लगा, तो लेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू vd dt. ठीक है. अगर vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव अक्रॉस द कंडक्टर. तो अगर उसकी वेलोसिटी vd है तो टाइम dt में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उसकी? vd dt. तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो गया? AVDDT. a vd dt. Volume is L into A, or you can say that A into vd dt. अब एक हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं which is referred as number density. Number density is number of free electrons per unit volume. Number of free electrons per unit volume अगर n है तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? N into AVDDT. Number density n is number of electrons in 1 meter cube. And dV. है ना? 1 मीटर क्यूब में अगर n है तो dv में हो जाएंगे NAVDDT. ठीक है. Yes. क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? Minus 1.6 into 10 raised to power minus. मतलब मैग्नीट्यूड ही चाहिए मेरे को, सिर्फ E. 1.6. तो dn इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? DN. dn into charge on one electron. Yes.
मतलब यहाँ से dq by dt क्या आ गया? and And dq by dt is so there's the relation between current and drift velocity. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि drift velocity is I upon NE है. अब उन्होंने जैसे पूछा पेपर में क्वेश्चन, a battery is applied across a conductor. If cross-sectional area of conductor is doubled without any other change, how will it affect the drift velocity? half. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनो, आराम से बताता हूँ. A potential difference is applied across a given conductor. If cross-sectional area of conductor is doubled without any other change, what will be the change in drift velocity? इस जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, इसमें तो करंट है. तो पहले मेरे को इसको पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बनाना पड़ेगा. I is V by R. एक रिलेशन आपने जो 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा था, R is rho L by A. Yes. ये तो कैंसिल हो गया. Constant. इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में वो पूछ रहे हैं, वो दो वे में पूछ सकते हैं ना. वो आपको कह सकते हैं करंट फ्लो कर रही है कांस्टेंट करंट और हमने एरिया डबल कर दिया विदाउट चेंजिंग द करंट, तो फिर आप ये रिलेशन लगा सकते हो. अगर उन्होंने कहा कि करंट चेंज नहीं कर दी बस एरिया डबल कर दिया, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा. बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बन जाएगा कि VD इज इक्वल्स टू rho L upon NE. अच्छा मेरे को अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम हो जाएगी? अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? चलो इसी रिलेशन को देखो पहले, रो एल अपॉन एन. इसमें से कौन कौन सी चीजें आपको कांस्टेंट लग रही हैं? Rho constant लग रहा है. फिजिकल कंडीशन सेम है तो रो कांस्टेंट है. फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं है तो रो कांस्टेंट नहीं है. ई कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर, लेंथ कांस्टेंट है. एन बेसिकली होता कितना है, ऑर्डर क्या होता है? केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, एन का ऑर्डर क्या होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मीटर क्यूब. जैसे मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयरन और एल्यूमिनियम और सिल्वर, तो ऑर्डर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेटल? 10 raised to power Sir, free electrons का बताइए. कितने? Free हाँ, फ्री electrons इलेक्ट्रॉन्स. इसका नहीं पता सर. अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ही बता दो. ऐसे अंदाजा लगा लो, कुछ ऐसे गैस मारना हो तो क्या मारोगे? गैस मारना हो तो इट्स 10 to the power 29 ऑर्डर. मतलब डिपेंडिंग ऑन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट दैट्स द ऑर्डर 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते. जैसे कल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था सिलिकॉन का, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए थे सिलिकॉन के पास, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था. पर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे. तो अगर लो टेम्परेचर पे नंबर डेंसिटी 0 है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा नंबर डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी.
दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अगर आपने पढ़े हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। पढ़ा है। इंट्रिंसिक क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? सर इंट्रिंसिक प्योर होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं उनमें इंट्रिंसिक impurity प्योर डालते होते हैं, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली। इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग कर दी तो फिर दो तरह के बन जाते हैं, एन टाइप पी टाइप। पढ़ा था हैं। एन टाइप पी टाइप? यस सर। एन टाइप क्या होते हैं? सर जिसमें फिफ्थ ग्रुप की impurity ऐड कर देते हैं। उसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? और दूसरे को पी टाइप क्यों बोलते हैं? सर उनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करती है उनमें। एन टाइप इज नेगेटिव टाइप, पी टाइप इज पॉजिटिव टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, होल्स मिनॉरिटी में। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी में। अगर मैं आपसे पूछूं एन टाइप पे नेट चार्ज कितना है? हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर इज वन इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन होल्स। तो नेट चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा। अभी आप में से ही मेरे को किसी ने बताया, शायद तानिश ने बताया, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ग्रुप 5 एलिमेंट ऐड करके। सिलिकॉन में फास्फोरस डाल दिया। सिलिकॉन के एटम पे चार्ज कितना होता है? सिलिकॉन के एटम पे। 0 फास्फोरस के एटम पे। 0 तो फिर चार्ज आया कहां से? नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा ना। जब आप एक न्यूट्रल एटम में दूसरा न्यूट्रल एटम डालोगे तो चार्ज कहां से आ गया? अरे मैंने बोला फ्री चार्जेस नेगेटिव ज्यादा है। जिसमें फ्री चार्जेस नेगेटिव ज्यादा होंगे उसमें बाउंड पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, सो दैट टोटल चार्ज रिमेन जीरो। एन टाइप पी टाइप पे चार्ज नहीं होता, वायर पे चार्ज होता है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। एक वायर में करंट फ्लो कर रही है, उसमें चार्ज है या अनचार्ज वायर है? आपके घर में इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, वो चार्ज हैं या अनचार्ज हैं? सर अनचार्ज। अनचार्ज। नेट चार्ज तो जीरो ही है ना उनपे, हमने कोई चार्ज थोड़ी किया उनको, सिर्फ चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो चार्ज फ्लो कर रहा है। पर नेट चार्ज तो उस वायर पे जीरो ही है। अब डिफरेंट तरह की वायर्स के डिफरेंट पर्पस होते हैं। आपकी जो नॉर्मल घर में कनेक्टिंग वायर्स हैं, दे आर मेड ऑफ कॉपर। कॉपर वायर्स यूज हो रही हैं एज कनेक्टिंग वायर्स। मतलब एल्यूमिनियम पहले यूज होती थी बिकॉज कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है रिलेटिव टू एल्यूमिनियम, तो हम कॉपर यूज करते हैं। इससे बेटर मटेरियल और क्या हो सकता था? सिल्वर। बट दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट मेनी फोल्ड, कि अगर आप घर में सिल्वर की वायरिंग कराओगे तो इसलिए हम कॉपर को यूज कर लेते हैं बिकॉज रिलेटिवली थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। एल्यूमिनियम लगाने का नुकसान क्या होगा? अगर मैं कॉपर की जगह एल्यूमिनियम की वायरिंग करता हूँ तो नुकसान क्या होता है? तो ज्यादा It will get heated. एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है। तो आपको क्या नुकसान है? बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। सर बिल ज्यादा बिकॉज भरना बिल तो पड़ेगा। आपको ही आया ना, मीटर तो उन्होंने आपके घर के एंट्री पे ही लगा दिया। तो आपके घर में जो आपने एनर्जी कंज्यूम की प्लस जो एनर्जी लॉस हुआ, सारा बिल आना है, तो बिल बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं। अब कॉपर की वायर भी जब आपने घर में देखी होगी, अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, चीजें याद रखना, ये कंसेप्चुअल आते हैं। घर में जो आपके कॉपर की वायर्स आती हैं, अगर आप उसको कभी ध्यान से इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को देखोगे, उसमें वो बात करते हैं कि कितनी, हाउ मेनी कोर्स वायर्स। मतलब एक वायर को जब आप खोलते हो उसमें बहुत सारी पतली पतली वायर्स और होती हैं, सिंगल Yes. मोटी वायर तो नहीं होती। नो सर। नंबर ऑफ थिन वायर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ थिक वायर। मार्केट से जब आप लेने जाते हो, द शॉपकीपर आस्क यू इज हाउ मेनी स्क्वायर मिलीमीटर वायर यू रिक्वायर। तो डिपेंडिंग ऑन आपने किस पर्पस के लिए लगानी है, अगर आपने एसी के लिए लगानी है तो आप थोड़ी मोटी वायर यूज करते हो। अगर आपने नॉर्मल फैन ट्यूबलाइट ये चलानी है तो हम पतली वायर यूज करते हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। एसी में बिकॉज करंट फ्लो ज्यादा होता है,
करंट फ्लो ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। और नॉर्मल में हम पतली वायर यूज कर लेते हैं बिकॉज मोटी वायर एक्सपेंसिव भी होती है, तो हमने वो बैलेंस बनाया हुआ है कि किस पर्पस के लिए यूज करनी है। बट अ सिंगल वायर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स। व्हाई? तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उससे resist- इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? So charge is only on surface in conduct. हाँ, तो उसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। जो एक्चुअल में चार्जेस फ्लो करते हैं वो स्किन में फ्लो करते हैं वायर्स की, तो आपको वो स्किन ज्यादा चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास एक सिंगल मोटी वायर है तो उसका बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज आपने अगर से 6 स्क्वायर मिलीमीटर की मोटी वायर ले ली, तो बीच में से ये जो रीजन है इसमें से तो करंट फ्लो ही नहीं कर रही, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सिर्फ यही मिला, ये बाहर वाला, ये तो अंदर वाला सारा वेस्ट हो गया, बिकॉज यहां से तो करंट फ्लो ही नहीं करनी। तो जो फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, इसमें ए होता है ए एरिया थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, नॉट दिस कंप्लीट एरिया, सिर्फ जिस एरिया में से करंट फ्लो कर रही है। बट अगर मैं बहुत सारी छोटी छोटी वायर्स को ज्वाइन कर दूंगा तो स्किन बढ़ गई इनकी, तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। तो इसलिए नंबर ऑफ थिन वायर्स आर जॉइंड टुगेदर, इट इज नोन एज स्किन इफेक्ट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि स्किन में से करंट फ्लो करती है। कभी भी किसी कंडक्टर में से आप देखोगे, अगर मतलब किसी की बॉडी में से भी करंट फ्लो करती है तो उसकी स्किन जल जाती है, बिकॉज करंट फ्लो से डेथ का रीजन क्या होता है? हम कहते हैं करंट लगे, इलेक्ट्रोक्यूटेड एंड ही डाइड। Nervous connection break हो जाता। नहीं, डाइड। नर्वस ब्रेकडाउन से ऐसे कोई एकदम तो नहीं मर जाता। फर्स्ट इज हार्ट फेलियर। नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार टीवी पे या कहीं हॉस्पिटल में देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज नोन एज डिफिब्रिलेटर, कार्डियक सर्जन यूज करते हैं। वो पंप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक के शॉक देते हैं। हार्ट अगर बीट करना बंद कर दे तो दे गिव द इलेक्ट्रिक शॉक दैट इट मे स्टार्ट वर्किंग, अगर अभी अभी बंद हुआ है, नॉट कि 2 दिन पहले मरा है तो उसको हम शॉक दे रहे हैं, बट दैट इज द फर्स्ट एड। इफ हार्ट रेट स्टॉप फंक्शनिंग, वो कई बार उसको पंप हाथ से करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो इट मे स्टार्ट फंक्शनिंग अगेन। तो उस डिवाइस का नाम होता है, नॉर्मली एम्बुलेंसेज में भी होती है शायद, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब मैंने मूवीज में देखा है कि एम्बुलेंस में भी वो डिफिब्रिलेटर होता है, दैट इज यूज्ड टू गिव द शॉक। तो फर्स्ट एड भी वही होती है। नॉर्मली अगर करंट लगने से कोई मरा है तो मरता भी वो कार्डियक फेलियर से ही, और फर्स्ट एड भी यही होती है, बट दैट इज इफ स्मॉल करंट इज देयर, मतलब नॉट वेरी स्मॉल, एप्रिशिएबल करंट इज देयर। तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करे तो फिर बर्निंग भी हो सकती है कि जल गया, जैसे आपने हाई पावर लाइन को टच कर दिया तो उससे तो हो सकता है कि जल ही गई बॉडी, इतनी ज्यादा हीट जनरेट हुई कि बॉडी जलनी शुरू हो गई। सो दैट कैन बी अ रीजन, बट दैट इज अ सेकेंडरी। वो होता है जब आपने हाई पावर लाइन 1,32,000 वोल्ट की लाइन को टच कर दिया, या किसी बहुत ज्यादा से करंट आपकी बॉडी से पास कर गई। इट्स ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विच इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल करंट इज नॉट डेंजरस। जैसे आपको शायद एक बार ही बताया था कि लाइन टेस्टर, पता है सबको क्या होता है? लाइन टेस्टर इलेक्ट्रीशियंस के पास देखा होगा, वो प्लग में डालते हैं कैसे स्क्रू ड्राइवर की तरह, और फिर पीछे फिंगर रखते हैं। Yes, sir. Yes. दैट इज कॉल्ड लाइन टेस्टर। उसमें जब लाइट ग्लो करती है, मतलब मैंने ऐसे जैसे रखा तो इसमें लाइट ग्लो की तो पता चल गया करंट फ्लो कर रही, तो पीछे हाथ रखना क्यों जरूरी होता है? Sir, path बिकॉज complete आपको वो करना पाथ चाहिए। कंप्लीट करना पड़ेगा कि यहाँ से करंट आएगी और आपके हाथ से फ्लो करके जाएगी, मतलब आप डेलिबरेटली अपनी बॉडी में से करंट फ्लो करा रहे हो। Yes, sir. तो ऐसे डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते सीधा फिंगर डाल के। Press ज्यादा हो जाएगा सर। तो लाइन टेस्टर में फिर क्या लगा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कम कर दे। बिकॉज स्मॉल करंट डेंजरस नहीं होती, उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, तो जब करंट फ्लो करती है वो ग्लो करता है, आपको पता चल जाता है कि लाइन वर्किंग है। या हम टेलीफोन लैंडलाइन वायर्स को कभी अपनी टंग पे टच करके देखना, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि उसमें करंट है या नहीं। लैंडलाइन फोन जब रिपेयर करने आते हैं तो जो टेक्नीशियन होते हैं उनके लाइन्समैन, वो यही करते हैं, अगर उन्होंने देखना है कि डेड है कि नहीं, वो इतनी कम करंट होती है लैंडलाइन फोन की वायर में कि वो लाइन टेस्टर से भी नहीं टेस्ट होती, तो वो वायर को उतार के अपनी जीभ पे टच करते हैं, तो उनसे उन्हें फील होता है कि इसमें करंट है या नहीं, बिकॉज एक वो फीलिंग आती है कि इसमें से कुछ फ्लो किया।
So small currents are never dangerous. It's always the large current which are dangerous. Because landline wire is based on these concept only. कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेसिकली अगर मैंने बोला आप लैंडलाइन फोन यूज कर रहे हो तो होता क्या, मैंने तो प्रोड्यूस की साउंड एनर्जी, पर वो वायर में से साउंड तो नहीं जाएगी ना, तो हमें साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा। तो वायर में इसलिए करंट फ्लो करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप डिफरेंट तरह की वायर देखते हो, जैसे केबल टीवी की वायर कैसी होती है, देखिए किसी ने केबल टीवी की वायर, टाटा स्काई और नॉर्मल केबल टीवी वायर कैसी होती है उनकी? सब मोटी होती है भाई। नहीं मोटी तो होती है, अंदर उसके कंस्ट्रक्शन पूछ रहा हूं मैं। उसके अंदर एक वायर होती है कॉपर की, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है वाइट कलर की, फिर उसके ऊपर एक मैश होती है। मैश इज अ ग्रिड काइंड ऑफ अ वायर, बहुत पतली पतली वायर्स करके एक मैश बनाई होती है, फिर उसके ऊपर एक और ब्लैक वायर होती है। जो सिग्नल आता है दैट कम्स थ्रू दैट सिंगल, जो सबसे अंदर वाली वायर है, मतलब वो इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है जो आपकी केबल की वायर है, कि पहले एक वायर, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट, फिर इसके ऊपर एक मैश, और फिर इसके ऊपर एक और कवर। मैश का रोल क्या होता है? मैश का रोल आप कभी अपने ना पेरेंट्स से बात करना, पुरानी वायर्स जो होती थी पहले, बिकॉज केबल नहीं होता था, एंटीना की वायर्स होती थी, तो वो नॉर्मल 2 कॉपर वायर्स आती थी, एंटीना आपकी छत पे लगता था घर के, वहां से आपके टीवी तक एक वायर आती थी, तो उसमें डिस्टर्बेंस आती थी बहुत। डिस्टर्बेंस इन अ सेंस कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस उनके पास ऑपरेट करती थी तो टीवी की पिक्चर डिस्टर्ब हो जाती थी। मैश इज अ कंडक्टिंग थिंग। एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जीरो होता है। तो मैश लगाने का पर्पस है कि वो जो वायर है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहा है, मान लो टाटा स्काई का सिग्नल आ रहा है, तो बाहर के सिग्नल उसको अफेक्ट ना कर सके, हम मैश लगा देते हैं, बिकॉज मैश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कोई नहीं आ सकता। वायर में तो थ्रू डायरेक्ट आ रहा है, मतलब ऊपर वो डिश के साथ अटैच है, नीचे आपके टीवी के साथ अटैच्ड है, उसमें तो करंट फ्लो कर रही है, बट मैश लगाने का पर्पस है कि जो बाहर के सिग्नल है वो उसको अफेक्ट ना कर सके, तो इसलिए उसके आसपास मैश लगा देते हैं। दैट इज अ कंसेप्ट को, उसको हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है, दैट इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि हमने शील्ड कर ली किसी चीज को एक्सटर्नल फील्ड से। सो पहले ये लिख लो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डायग्राम बना लो, इसको ड्राइव कर लेते हैं। इसके ना बहुत सारे कंसेप्चुअल आएंगे, ऐसे तो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, नोट्स में भी काफी के आंसर दिए होंगे, जो मैंने कंसेप्चुअल की शीट दी थी उसमें ये आंसर दिए हुए हैं सारे। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर लिखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Relation between current and drift velocity. Consider a conductor of length L, cross-sectional area A, and number density N. Number density N, small n, bracket में लिख लो. Number density is the number of free electrons. Number density is the number of free electrons per unit volume. Number of free electrons per unit volume in a conductor. When potential difference is applied, drift velocity of electrons is Vd. Drift velocity of electrons is Vd. सर रिपीट करना लाइन। When potential difference is applied,
drift velocity of electrons is Vd. The time taken by electron to move across the conductor. Time taken by electron to move across the conductor is dt. Thus, length of conductors magnitude लिख रहा हूँ, I'm not writing about the direction. न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लेना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको. एक पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में लिख लिया, एक करंट की टर्म्स में लिख लिया. क्लियर है इतना? आज वाला समझ में आया क्या किया? We did Ohm's law, concept of drift velocity, relaxation time, relation between current and drift velocity और थोड़े से conceptual. इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो भी कल करेंगे इसके आगे. एंड हाँ जी, सर कल संडे क्लास कितने बजे होगी सुबह? सुबह जो एडवांस की क्लास है that will be कितने बजे रखे? जल्दी रखे या थोड़ा सा लेट रखे? बोलो. जल्दी रख लो. सर जल्दी जल्दी रखनी, रखो. जल्दी रखनी है तो यू कैन हैव ये सुबह पिछले साल वालों की भी क्लास है अभी. यू कैन हैव 7:30 to 9:30, मतलब जितनी देर भी लगेगी. 7:30 शुरू कर लेंगे, देन वी सी कैसे चल रही है क्लास. इवनिंग उसे इवनिंग बैच होगा? क्या चीज? इवनिंग में भी क्लास होगी क्या? इवनिंग में भी हाँ रख लेंगे. ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें चल रही हैं. ये कौन सा भी मैं कुछ मुश्किल करा रहा हूँ? अभी तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ. जब आपका मैंने बोला जब बैकलॉग हो जाएगा तब बताना, तब छुट्टी दे दूंगा एक दिन की. अभी तो ये तो शुरू हुआ है चैप्टर, अभी तो बैकलॉग क्या होगा. जब बैकलॉग होगा तब छुट्टी ले लेना बेशक. अभी तब तक चलने दो ऐसे ही. जब मेजोरिटी को लगेगा कि अब एक छुट्टी रिक्वायर्ड है तब कर दूंगा. मतलब मेरे को ऐसा संडे नहीं है रोज ही संडे आप कौन सा स्कूल जाते हो, तो जिस दिन आपको लगेगा कि एक छुट्टी चाहिए मेरे को बता देना, मैं उस दिन छुट्टी कर दूंगा.